Hello children, in previous videos I have explained the chapter retirement or death of a partner. In this chapter mostly topics I have covered like retirement of a partner. Its meaning is a partner has the right to retire from the firm after giving due notice in advance. Old partnership comes to an end after the retirement of a partner, but the firm continues and a new partnership comes into existence between the remaining partner. Second is profit sharing ratio, change in profit sharing ratio. Profit sharing ratio meaning is which the continuing partners will share profit. The share of each remaining partner will be the sum total of his old share of profit in the firm and the portion of the retiring partner's share of the profit required. It's calculated by new share is equals to old share plus acquired share. Third is accounting treatment of goodwill. When a partner retires, the continuing partners gain his share of profit. They thus have to compensate the retiring partner for his share in the goodwill in the gaining ratio. It has two cases. First is when goodwill does not appear in the books of account. That time we will prepare journal entry continuing partners capital account debit to retiring partners capital account. Second is when goodwill exists in the accounting books. That time we will prepare the entry all partners capital account debit to goodwill account. Next is revaluation of assets and reassessment of liabilities. Generally, when a retired partner from a partnership firm, the assets and liabilities are revalued and adjusted on the date of retirement so that the retiring partner gets his fair share of the firm's assets. When the assets and liabilities of the firm are revalued, a revaluation account, profit and loss adjustment account is prepared in the same way as is prepared in the case of admission of a new partner. The only difference between them, in case of retirement, any profit or loss on revaluation is divided amongst all the partners, whereas in case of admission of a new partner, the new partner does not share such profit or loss on revaluation. Next is reserves and accumulated profit and losses. At the time of retirement of a partner, if there are any undistributed profits or reserves, the same need to be divided amongst all the partners in their old profit sharing ratio. Accumulated profits and reserves belong to the all partners. They should be credited to all partners capital account in their old profit sharing ratio. Next is computation of amount due to retiring partner. Adjustment of capital. Now this time adjustment of capital has deleted from the CBSE side. Next is liability towards a retiring partner. अब हम यहाँ पर बात करेंगे हमारे ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये लगभग मैंने आपको सबको इनके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और थ्योरी नोट्स जो हैं वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा चुकी हूँ. नेक्स्ट इज लायबिलिटी टूवर्ड्स अ रिटायरिंग पार्टनर कि रिटायरमेंट जो हो रहा है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके लिए लायबिलिटीज क्या हैं जो फर्म उसको पे करेगी. एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड ऑन द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर. जब फर्म से पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उस टाइम पर हम किस तरह की रिक्वायरमेंट है, एडजस्टमेंट्स है, वो कैसे हम एडजस्ट करेंगे. सेक्रीफाइसिंग रेशो, गेनिंग रेशो, न्यू रेशो, ऑल आई हैव एक्सप्लेन विद द न्यूमेरिकल क्वेश्चन. पेमेंट ऑफ फुल अमाउंट इन लमसम, पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट. अब यहाँ पर कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर. In the topic computation of amount due to retiring partner, two types. First, payment of full amount in lump sum, payment in installment. जब यहाँ पर हम कंप्यूटेशन मतलब कैलकुलेट कर रहे हैं कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको हमें कौन सी अमाउंट है जो ड्यू है हमारे ऊपर और हमें पेमेंट करनी है, तो उस समय पर जो फर्म है वो उसको
जो है 2 टाइप से पेमेंट करेगी। फर्स्ट, पेमेंट ऑफ अमाउंट, फुल अमाउंट इन लमसम। एक केस होगा कि जब रिटायर होने वाले पार्टनर को फर्म पूरा का पूरा एक सिंगल अमाउंट में देगी, लमसम अमाउंट में पे करेगी और उसको जाने के लिए कह देगी। सेकंड, पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट, जब वहां पर फर्म उसको कुछ अमाउंट अभी देगी और बाकी जो उसकी ड्यू अमाउंट है उसके लिए वो इंस्टॉलमेंट बना देगी। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चिल्ड्रन, प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को हिडन गुडविल के क्वेश्चन जो है वो समझाए थे और क्वेश्चन भी दिए थे। आज हम पढ़ेंगे रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। इसका क्या मतलब है? व्हेन अ पार्टनर रिटायर, द रीवैल्यूएशन अकाउंट हैज टू बी ड्रॉन अप in the same way as it is drawn at the time of admission of a partner. The only difference between the two types of revaluation account is that at the time of retirement, all the partners share profits and losses arising on revaluation, including the outgoing partner, in their old profit sharing ratio, while at the time of admission only, the old partners such share profits or losses. A revaluation account is closed automatically when the profits or losses are transferred to the partner's capital or current account. इसका मतलब है कि रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज में कि जब कोई फर्म से पार्टनर रिटायर होता है, द रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो वहाँ पर एक जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट हम क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जब हमारी फर्म में एडमिशन कंसेप्ट है तो एडमिशन के टाइम पर फर्म पे जो भी पार्टनर आता है वो डिमांड करता है, वो पूछता है फर्म से कि भाई आपके पास कितनी एसेट्स हैं, आपने कितनी, आपके ऊपर कितनी जो लायबिलिटी है वो ड्यू है। तो उसको बनाने से जो वहाँ पर एक्चुअल वैल्यू है वो उसको पता चलती है। The only difference between the two types of revaluation account, 2 टाइप्स के रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पर बन रहे हैं। फर्स्ट, जब हमारा एडमिशन हो रहा है, और सेकंड, जब हमारा रिटायरमेंट हो रहा है। जब हमारा एडमिशन हो रहा है और दैट टाइम पर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं, तो वहाँ पर जो नया पार्टनर है वो फर्म की सारी एसेट्स को रिवैल्यूएशन करवाता है, मतलब चेक करवाता है कि ऐसा तो नहीं है कि सपोज आपने किसी मशीन की वैल्यू मुझे बताई कि वो 50,000 है, लेकिन और आप कह रहे हैं कि उसकी अमाउंट जो है वो 50,000 है, लेकिन जब मैंने मार्केट में अगर उसके बारे में पता किया तो वहाँ पर उसकी अमाउंट जो है वो इंक्रीज है या फिर डिक्रीज है। तो बहुत सारे केसेस हैं या बहुत सारी सिचुएशंस हैं जिनकी वजह से एट द टाइम ऑफ एडमिशन द न्यू पार्टनर हैज़ टू चेक ऑल द एसेट्स अमाउंट विद द रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो वहाँ पर वो एक रिवैल्यूएशन अकाउंट की डिमांड करता है और वहाँ पर हमें एक रिवैल्यूएशन अकाउंट में अपनी जो फर्म की एसेट्स हैं और जो लायबिलिटीज़ हैं ड्यू, उन सबको डिटेल करना पड़ता है। और वहाँ पर हम चेक करते हैं कि हमारी, और जो नया पार्टनर वो चेक करता है कि हमारी एसेट्स और जो लायबिलिटीज़ हैं वो क्या है। लॉसेज अराइजिंग, ऑल द पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज अराइजिंग ऑन रिवैल्यूएशन including the outgoing partner in their old profit sharing ratio. अब यहाँ पर जो भी एट द टाइम ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, जो भी प्रॉफिट या लॉसेज होते हैं वो पुराने पार्टनर्स के पुराने रेशो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। वाइल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ओनली द ओल्ड पार्टनर्स शेयर सच प्रॉफिट और लॉसेज। यहाँ पर जब हम एडमिशन के कंसेप्ट में पढ़ रहे हैं तो ओल्ड पार्टनर, वो सारी एसेट्स किसकी हैं, ओल्ड पार्टनर की, और जो भी प्रॉफिट और लॉसेज है वो भी आपस में उनको शेयर हो जाते हैं। अ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज क्लोज ऑटोमेटिकली व्हेन द प्रॉफिट और लॉस आर ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, कि उसके बाद जब हम वहाँ पर रीचेक करते हैं और अपनी एसेट्स की रिवैल्यूएशन करते हैं और असेसमेंट चेक करते हैं अपनी लायबिलिटीज़ की, तो वहाँ पर जो भी डिफरेंस, जो भी प्रॉफिट और लॉस क्रिएट होते हैं उसको फर्म पुराने पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जो है वो ट्रांसफ़र कर देती है। इसी के लिए आज एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन इज revaluation of assets and reassessment of liabilities. XYZ partners profit sharing ratio 2:1. On 31st March 2016, their balance sheet stood as under. These are the liabilities and these are the assets. अब यहाँ पर ध्यान से क्वेश्चन को समझना है। सन्ड्री क्रेडिटर्स 19,000, बैंक लोन 30,000,
partners capital account XYZ 45,000, subtotal is 94,000. Assets are building 25, sundry debtor 25, machinery 18, cash in hand 10,000, cash at bank 6,000, stock 10,000. Subtotal is 94,000. Now the question start. On 1st April 2016, Y decide to retire from the firm. On the day, the assets and liabilities of the firm are revalued as follows. अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि 1 अप्रैल 2016 को आपने 31 मार्च 2016 को अपना जो अकाउंट है वो क्लोज किया, बैलेंस शीट प्रिपेयर की और उसके बाद 1 अप्रैल 2016 को वहाँ पर एक नया पार्टनर जो है वो एडमिट हो रहा है, रिटायर हो रहा है 1 अप्रैल 2016 को. वाई डिसाइड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म. अब यहाँ पर जो वाई है वो डिसाइड कर चुका है कि मुझे फर्म से रिटायरमेंट लेना है. ऑन दैट डे द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म आर रीवैल्यूड एज फॉलो. तो यहाँ पर फर्म जो है अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज को रीवैल्यूड कर रही है. ठीक है. फर्स्ट इज बिल्डिंग इज वैल्यूड 28,000. अब यहाँ पर चेक करिए कि जो हमारा प्रीवियस ईयर था वहाँ पर बिल्डिंग की अमाउंट 25,000 थी. अब यहाँ पर नए सेशन में जो स्टार्टिंग हुई है वहाँ पर बिल्डिंग की अमाउंट जो है वो 28,000 है. तो इसका मतलब यहाँ पर बिल्डिंग की जो अमाउंट है उसमें क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ तो आपको क्या है वहाँ पर प्रॉफिट मिला फर्म में जो पार्टनर्स है. वैल्यू ऑफ स्टॉक हैज़ बीन इंक्रीज बाय 5,000. स्टॉक की हमारी वैल्यू है 10,000. अब यहाँ पर ये जो स्टॉक है ये 5,000 का इंक्रीज हो चुका है. प्रोविजन 5% इज टू बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ऑन डेप्टर. यहाँ पर जो हमारे डेप्टर है वो 25,000 के हैं, जिसमें से 5,000 जो डेप्टर है वो क्या बन चुके हैं हमारे डाउटफुल डेब्ट्स. ठीक है. मशीनरी इज वैल्यूड 15,000. मशीन की वैल्यू 18,000 थी लेकिन मशीन में डेप्रिसिएशन लगा और वहाँ पर उसकी वैल्यू 15,000 रिमेन है. तो इसका मतलब हमें यहाँ पर क्या हुआ, लॉस हुआ. अमाउंट ड्यू टू सन्ड्री क्रेडिटर्स हैज़ बीन डिक्रीज बाय 5,000. अब हमारे जो सन्ड्री क्रेडिटर थे 19,000 के वो हमारे कितने रह चुके हैं 5,000. पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज on revaluation of assets and liabilities and also prepare a revaluation account. So यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि जो भी ये चेंजेस हुए हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज में उन सभी को प्रिपेयर करने के लिए आपको जनरल एंट्रीज प्रिपेयर करनी है और एक रिवैल्यूएशन अकाउंट को भी प्रॉपर फॉर्मेट में हमें क्या करना है, प्रिपेयर करना है. ठीक है. सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 4250. अभी कैसे आया, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कि हमारे जो डेब्ट्स थे वो थे 25,000 के डेप्टर थे, जिसमें से क्वेश्चन में बताया है कि 5,000 जो है वो क्या हो चुके हैं, हमारे बैड डेब्ट्स हो चुके हैं. तो उसको कैलकुलेट करेंगे तो 1250. तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हमारे कितने हैं 1250. मशीनरी हमारी 18,000 की थी, 15,000 की रह चुकी है, 3,000 यहाँ पर क्या हुआ में. मशीनरी 18,000 की थी, अब उसकी वैल्यू 15,000 है. तो इसका मतलब 3,000 का उसमें क्या लगा, डेप्रिसिएशन. तो जब हमें किसी एसेट्स पर लॉस होगा, उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी तो रिवैल्यूएशन सबसे पहले आएगा. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 4250. टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 1250. मशीनरी अकाउंट 3,000. Being decrease in value of machinery and creation of provision are recorded. Second is building account debit. अब यहाँ पर हमारी बिल्डिंग 25,000 की थी एट द टाइम ऑफ बैलेंस शीट, अब उसकी वैल्यू 28,000 हो चुकी है. तो इसका मतलब 3,000 का क्या हुआ, वहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ, एप्रिसिएशन हुआ. तो ये 3,000 है. स्टॉक की वैल्यू हमारी बढ़ी, पहले स्टॉक 10,000 का था, अब उसकी वैल्यू 15,000 है. तो यहाँ पर 5,000 हमें स्टॉक में इंक्रीमेंट मिल रहा है. सन्ड्री क्रेडिटर्स 19,000 के हमारी क्या थी, क्रेडिटेशन थी, जिसमें से 5,000 डिक्रीज हो चुकी है. तो अब ये हमारी 5,000 डिक्रीज है. टू रिवैल्यूएशन अकाउंट टोटल 13,000. बीइंग इंक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटीज. यहाँ पर हमारी एसेट्स बढ़ रही हैं और हमारी लाइबिलिटीज जो है कम हो रही हैं. अगर हमारी लाइबिलिटीज कम हो रही है तो भी हमारा क्या है, प्रॉफिट है. एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटीज हैव बीन रिकॉर्डेड. तो जब हमें प्रॉफिट होगा तो हमारा सारी जो एसेट्स हैं, सारी हमारी जो लाइबिलिटीज हैं उनको हम डेबिट करेंगे
टू रिवैल्यूएशन अकाउंट से। जब हमें लॉस होगा हमारी एसेट्स में या हमारी लायबिलिटीज में, तो हम सबसे पहले लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसका मतलब है कि जो लॉस है वो हम कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, रिवैल्यूएशन के टाइम पर हमें लॉस हुआ है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट वहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 8750 टू XYZ। तो हमने जो रिवैल्यूएशन, हमें जो प्रॉफिट हुआ है रिवैल्यूएशन के टाइम पर एसेट्स को रिवैल्यूएशन करने से और रीअसेसमेंट करने से लायबिलिटीज का, हमें जो वहाँ पर अमाउंट मिली है 8750 की, उसको हमने XYZ में उनके जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किया है। बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर, कि यहाँ पर रिवैल्यूएशन के टाइम पर जो प्रॉफिट हमें गेन हुआ है फर्म को, उसको हमने XYZ तीनों पार्टनर को बांटा है, जिसमें हमारा जो जेड है वो एज अ रिटायरिंग पार्टनर है। अगर वो रिटायरिंग पार्टनर है तो उसका भी उसके अंदर कंट्रीब्यूशन है, उसका भी उसमें रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट है। ठीक है, नाउ वी हैव प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब यहाँ पर जो हमारी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी उसकी अमाउंट आएगी, यहाँ पर जो हमारी डिक्रीज होंगी उनकी अमाउंट आएगी। बाय बिल्डिंग हमारी 3000 से इंक्रीज हो रही है, स्टॉक हमारा 5000 इंक्रीज हुआ, सन्ड्री क्रेडिटर हमारे 5000 के हमें और छूट मिली, टोटल हमारी जो है एसेट्स 13000। इसमें से हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये हमारा क्या हुआ, डाउटफुल डेब्ट्स हमारे डिक्रीज हुए, मशीनरी हमारी डिक्रीज हुई, हमें लॉस हुआ। टू प्रॉफिट 13,000 minus 1250 minus 3,000, remaining amount is 8,750. Also divided profit sharing ratio in the old profit sharing old partner। तो यहाँ पर 8750 को जब हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पुराने पार्टनर सभी पार्टनर्स को बांटेंगे, तो यहाँ पर जो प्रॉफिट हुआ फर्म को वो है 3500 टू X, 3500 टू Y और Z 1750। सो चिल्ड्रन, इस तरह से आज हमने एक क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट और हमारा जनरल एंट्री रिवैल्यूएशन में कैसे बनती है ये मैंने आपको बताया। एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज एंड रिजर्व। ये मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट वीडियो में समझाया था। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस और रिजर्व का मतलब है कि जब फर्म में कुछ ऐसे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व होते हैं जिनको फर्म टाइम टू टाइम बांटती नहीं है, सिर्फ इकट्ठा करती रहती है और फर्म में जितने भी पार्टनर्स हैं उनको ये शो करती रहती है कि ये सभी के हैं, तो उन्हें हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस रिजर्व कहते हैं। अपॉन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, इफ देयर आर any undistributed profits or reserves, the same need to be divided amongst all the partners in their old profit sharing ratio. Accumulated profits and reserves belong to all partners, क्योंकि जितने भी प्रॉफिट्स और रिजर्व हमने किए हैं, एक्यूमुलेटेड इसलिए क्योंकि अभी हमने उसको अनडिस्ट्रीब्यूट रखा हुआ है, अभी वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए हैं किसी भी पार्टनर्स में। रिजर्व बिलोंग टू ऑल पार्टनर, कि जितने भी प्रॉफिट है फर्म के पास जो अभी तक नहीं बटे, जितने भी ऐसे रिजर्व हैं जो अभी तक पार्टनर्स को नहीं मिले, तो वो सबका किसका कंट्रीब्यूशन है, बिलोंग टू ऑल पार्टनर्स, सभी लोगों का उसके अंदर कंट्रीब्यूशन है। हेंस दे शुड बी क्रेडिटेड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो हम सभी पुराने पार्टनर्स के पुराने रेशो के अकॉर्डिंग उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अल्टरनेटिवली ओनली द रिटायरिंग पार्टनर शेयर में बी ट्रांसफर्ड to his capital account if the other partners continue to share profit in their old ratio and want to show reserve in the balance sheet still। इसका मतलब है कि उनमें से केवल अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो जो भी हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस और रिजर्व्स की अमाउंट है वो हम रिटायरिंग पार्टनर के रेशो के अकॉर्डिंग उसको बांटेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे उसके कैपिटल अकाउंट में, और जो भी उसको यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा, जो भी पेमेंट उसको की जाएगी, वो सभी पुराने पार्टनर अपने ओल्ड रेशो के अकॉर्डिंग उसको देते रहेंगे, और बैलेंस शीट में जो हमारे रिजर्व है वो हम शो करते रहेंगे एज इट इज़, कि जैसे हम पहले करते। एग्जाम्पल इज इफ़ PQR शेयरिंग प्रॉफिट रेशो 432, 3 पार्टनर है, रेशो 432 है। P डिसाइड टू रिटायर वैन रिजर्व आर 45,000। P ने डिसाइड किया कि मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ
उस टाइम पर जो फर्म के रिजर्व थे वो थे 45,000 के। द फॉलोइंग एंट्री नीड टू बी पास इन द अबव मेंशन केसेस। रिजर्व अकाउंट डेबिट, आपके पास रिजर्व 45,000 है, टू पी कैपिटल अकाउंट, क्यू कैपिटल, टू आर कैपिटल। अब वो रिजर्व जो है वो तीनों के कैपिटल अकाउंट में बट गए हैं। बीइंग द ट्रांसफर ऑफ रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन रेशियो ऑफ 4:3 ऑन पी रिटायरमेंट, कि जब पी रिटायरमेंट ले रहा है फर्म से तो फर्म ने जो रिजर्व थे वो सबने उनको बांट दिया। तो इस तरह से यहाँ पर हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस रेशो के लिए भी इस तरह से जनरल एंट्री बनाते हैं। ऑलरेडी मैंने ये सब आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। नाउ चिल्ड्रन, you will do the numerical question related to the revaluation of assets and reassessment of liabilities. Prepare revaluation account with general entries. So children, these question you will do in your in your notebook. So take care. Goodbye.